hello everyone. My name is Shrija Tripathi and today we have podcast with Professor Radheshya Macholia sir, HOD CSE. So आज हम इस पॉडकास्ट में इंजीनियरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग. सो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू तो श्रीजा। सर बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज चूज करने से पहले कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज देर आर मनी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन. तो सर आपके हिसाब से कॉलेज चूज करने से पहले हमें किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू श्रीजा फॉर दिस पॉडकास्ट। मैं यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जब कॉलेज चूज करता है, वेदर इट विल बी ऑटोनोमस और इट विल बी अफिलिएटेड, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को सोचना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज करिकुलम, व्हाट करिकुलम बेसिकली दैट कॉलेज और दैट डिपार्टमेंट इज फॉलोइंग, बिकॉज करिकुलम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Second part is, as per the industry trend, what are the things that are running that particular by that college? Because in today's era, industry is changing rapidly. So, what extra value addition we are providing, that is most important. And third thing is, ultimately, student focuses on the placement. But here, my concern is, rather than focusing on the placement, you should first focus on that what is the process of your engineering. If the process is clear, then automatically placement comes. So here, as an affiliated institute, or I can say as a HOD of affiliated institute, I must say that like we are following the curriculum of RGPV, but to bridge the industry academia gap, we are following some of the reputed collaboration and tie-ups, like we have Microsoft collaboration, we have Google collaboration, that provides an opportunity to students from local to global. There are various certifications, there are endless opportunities. They can have a visit of Microsoft Office Noida, so that they will be able to visit the office, they will be able to know the culture, how basically the industries are running. Along with that, we have some collaboration with IITs like IIT Indore, IIT Bombay, IIT Delhi. The collaboration are basically useful for the students because they provide the opportunity to explore the things beyond their regular classroom teaching. Along with that, we regularly organize industry visits. इंडस्ट्री विजिट एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में जाते हैं और एक लाइव कॉरपोरेट कल्चर को देखते हैं, तो उससे वो बहुत सारी चीज़ सीखते हैं कि जब मैं आफ्टर माय इंजीनियरिंग जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मैं किस तरीके से मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है. So these are the initiatives, or we can say like collaborations, which basically bridge the industry academia gap. Along with that, we introduce technical training programs from first year itself. So that will help students to align themselves along with the industry skills that are required. Mock interviews, resume preparations are there, so that will provide them a kind of cozy environment. They feel comfortable after appearing in the multiple mock interviews, so that जब भी वो इंटरव्यूज के लिए अपियर होते हैं, मेन इंटरव्यूज के लिए, सो दे विल हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैम, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प देम. एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को एक फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है. आप एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ इस चीज़ को सोच सकते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है आपके कॉलेज को डिसाइड करने के लिए, बिकॉज you should not focus on the highest package that college is providing. You should focus on the average package, and that range will help you that what can be my process and how basically I will be the part of that particular process, and how basically I can be a kind of that particular student who can cover all these things, and then I can go for a better career journey. So I hope these factors जो स्टूडेंट एक ध्यान में रख सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट they should take a decision that which college I need to choose. तो सर एडमिशन तो हो गया बट असली जर्नी स्टार्ट होती है अब. लाइक हाउ कैन स्टूडेंट्स मेक दिस जर्नी ट्रूली मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल? ओके, मैं यहाँ पर इस चीज़ को ये बोलना चाहूँगा कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं और ये जो 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी है, दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल. सो कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लब्स एंड चैप्टर्स, जो आपकी इस जर्नी को एक मीनिंगफुल जर्नी बनाने में बहुत मदद करता है. There are various clubs and chapters, like if I say GDG on campus Google Developer Group, we have Hackathon Club, we have SheCap Campus Ambassador Program, we have Geeks for Geeks student chapter. These chapters basically provide a kind of atmosphere to students that वो आपस में interact करते हैं,
सीनियर जूनियर्स का एक इंटरेक्शन होता है, दे नो दैट हाउ बेसिकली दीज क्लब्स आर रनिंग, ये क्लब्स किस तरीके से काम करते हैं। एंड दीज आर नॉट द लोकल क्लब्स, दीज आर द क्लब्स दैट आर एसोसिएटेड विद सम ऑफ द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्हें ये हेल्प करता है कि राइट नाउ व्हाट आर द चेंजेस जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि इतने रैपिड चेंजेस हैं, उन रैपिड चेंजेस में से कॉलेज क्या ऑफर आपको कर रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो जो क्लब्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर्स, देयर इज IEEE स्टूडेंट चैप्टर, देयर इज II स्टूडेंट चैप्टर, देयर इज ISTE स्टूडेंट चैप्टर। तो क्लब और चैप्टर स्टूडेंट की जर्नी का एक वो इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि आप स्टार्टिंग से उस क्लब में जुड़िए, आप पहले पार्टिसिपेट करिए उन क्लब्स के एक्टिविटीज में, आप देखिए कि किस क्लब में क्या होता है, एक्सप्लोर करें पहले सारे क्लब्स को। एक्सप्लोर करने के बाद देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच क्लब इज सूटेबल फॉर मी। और जब आप क्लब्स में इन सारे बच्चों के साथ जब आप काम करते हैं, जब आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी एक पर्सनालिटी जो निखर के आती है वो अल्टीमेट होती है। बिकॉज क्लासरूम टीचिंग इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट, आपका टेक्निकल नॉलेज इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। जब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, आपका स्टेज फियर दूर होता है, आप 10 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो आपकी एक कन्विंसिंग एबिलिटी डेवलप होती है। और ये अल्टीमेटली आपको मदद करती है जब आप प्लेसमेंट में जाते हैं। और अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर करते हैं तो कॉलेज लाइफ अलग ही आपको एक रोल प्ले करती है। यू विल नॉट फील कि माई कॉलेज लाइफ इज सम काइंड ऑफ बोर्डम और सम काइंड ऑफ लोनलीनेस। ये आपको एक अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। वो क्लब्स, उनकी एक्टिविटीज़ वो हमें हमेशा लाइफ टाइम याद रहते हैं। सिट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो हमारा एनुअल फेस्ट होता है, इट इज़ बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। सो ये जितने भी क्लब्स, चैप्टर्स और इंस्टीट्यूट के नेशनल इवेंट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आप अपनी पर्सनालिटी को और निखर के लेके आते हैं। और ये क्लब्स कहीं ना कहीं आपकी इस 4 साल की जर्नी को इतना अच्छा बनाते हैं कि जब भी आप एज एन एलुमनाई अपने कॉलेज में वापस एंटर करते हैं तो यू विल फील दैट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया। और ये क्लब्स और ये चैप्टर्स आपके जीवन का एक यादगार पहलू बन के रह जाता है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि अगर एक स्टूडेंट को अपना इंजीनियरिंग जर्नी मीनिंगफुल बनाना है या मेमोरेबल बनाना है, तो बी द पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन क्लब, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर जर्नी। सर, तो जैसा कि आपने इंजीनियरिंग जर्नी और इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करी, तो बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि लाइक हमें किस स्टेज पर क्या करना चाहिए। सो अगर आपको किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को डे 1 से मेंटर करना होगा, तो आपका एक आइडियल रोड मैप क्या होगा? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये जनरली मैंने देखा है जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि व्हेन दे स्टार्ट देयर करियर एंड व्हेन दे स्टार्ट इन देयर इंजीनियरिंग, जनरली दे आर कंफ्यूज्ड, और पहला साल देखते देखते निकल जाता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं, और फर्स्ट ईयर में अगर मैं ईयर वाइज रोड मैप की बात करूंगा यहाँ पर आप सभी लोगों से, तो फर्स्ट ईयर की जब हम बात करें तो सबसे पहले यू नीड टू एडजस्ट विद दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक नए एनवायरनमेंट में आते हैं, एक नई बिल्डिंग होती है, नई फीलिंग होती है, नए दोस्त होते हैं। तो सबसे पहले आप उस एनवायरनमेंट में फिट होइए, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करिए। फोकस ऑन योर करिकुलम, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब आप आते हैं तो लेवल भी चेंज होता है। तो सबसे पहले हमें अपने करिकुलम पे फोकस करना है। और करिकुलम पे फोकस करने का मतलब ये है कि क्योंकि फर्स्ट ईयर में जनरली आपके सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जनरली कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो मुझे डे 1 से एक इंजीनियर की सोच के साथ हमने करिकुलम को देखना है कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन दैट सब्जेक्ट इज हैविंग, मैं किस तरीके से इन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकता हूँ इंजीनियरिंग नॉलेज के साथ। तो फर्स्ट ईयर में आप इसके साथ साथ स्टार्ट मेकिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज लिंक्डइन विल हेल्प यू लॉट। जब आप अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन की फर्स्ट ईयर से बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छे अच्छे सीनियर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। आपके कॉलेज में हम जो भी एक्सपर्ट टॉक्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो भी हमारे आउटसाइड कनेक्ट होते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क विद दैम। This network will help you a lot whenever you will be able to join a club as a president or as a organizing member। और यही कनेक्शन जो हैं ये अल्टीमेटली हमें हेल्प करते हैं आगे जाकर हमारे प्लेसमेंट्स में भी, क्योंकि हमें पता होता है उन कनेक्शंस के साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो कि व्हाट ट्रेंड्स
are going on, what is their journey, that as a kind of inspiration for us. So फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए आई होप इतना सफिशियंट है, और साथ ही साथ हम एक कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, बिकॉज अल्टीमेटली नाउ आई एम नॉट अ 12th ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर. So basically when I am entering in an engineering, so I should focus on that communication skill also. अब बात करते हैं हम, जब सेकंड ईयर में जब स्टूडेंट आता है तो सेकंड ईयर में यू शुड नो योर कोर सब्जेक्ट्स. आपके कोर सब्जेक्ट्स, जैसे अगर हम सीएस की बात करें तो देयर आर डेटा स्ट्रक्चर, देयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देयर इज एडा. सो दीज आर द सब्जेक्ट्स. इन सब्जेक्ट्स को बस पास होने के हिसाब से ना पढ़ें, ये सब्जेक्ट्स आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए काम में आएंगे. कोई भी कंपनी है, कितना भी हम अपग्रेडेशन की बात कर लें, एआई की बात करें, एमएल की बात करें, बट कोर और बेस जो है वो हमेशा इन सब्जेक्ट से बनता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सेकंड ईयर में आने के बाद मैं इन कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करूं, इन सब्जेक्ट्स की एप्लीकेबिलिटी देखूं अगेन कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है. जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसको मैं एप्लीकेशन के साथ रिलेट करूं, सो दैट आपको रटना नहीं पड़ेगा. एक बहुत ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ कि दे मग अप ऑल द थिंग्स एंड देन दे वॉमिट इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो ये नहीं करना है. आप कंसेप्ट्स को लर्न करिए, आप उन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ रिलेट करिए. जो भी कोलैबोरेशन के थ्रू हम इंडस्ट्री टॉक्स या इंडस्ट्री विजिट्स इनको सुनते हैं, आप वहाँ इन सब्जेक्ट्स को रिलेट करिए कि अच्छा जो स्पीकर ने बताया था और जो सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ ये कहाँ पर एप्लीकेबल हो पा रहा है. स्टार्ट बिल्डिंग स्मॉल स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल कंसेप्ट्स को लर्न करना अलग होता है, और जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में आप इन सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करते हैं, और जब आप इनको मर्ज करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अल्टीमेटली दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू इन योर रिज्यूमे बिल्डिंग. क्योंकि ये वो समय होता है जहाँ से हमें अपना रिज्यूमे भी बनाना स्टार्ट करना है. आई शुड अपग्रेड माई रिज्यूमे इन एवरी सेमेस्टर. दैट विल हेल्प यू टू असेस योर लर्निंग कि मैंने सेमेस्टर बाय सेमेस्टर क्या अपग्रेड किया. Along with that, at least choose one skill जो आप यहाँ से स्टार्ट करें कि जो भी मुझे कैरिकुलम में मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे साथ है, बट उसके साथ साथ वन एड ऑन स्किल जो इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहे हैं. तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी इंजीनियरिंग जर्नी आगे बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपके लर्निंग स्किल्स जो हैं एड ऑन होते जाएंगे, जो इंडस्ट्री में आगे कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे. देन इफ यू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज गिट प्रोफाइल. एक सेकंड ईयर स्टार्ट से स्टूडेंट को अपना गिट प्रोफाइल बनाते आना चाहिए, बिकॉज हर इंडस्ट्री आज की तारीख में ओपन सोर्स टूल पे काम कर रही है. और अगर आप सेकंड ईयर से अपना गिट प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करते हैं तो जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल आपको कनेक्शंस और नेटवर्क में हेल्प करता है, इसी तरीके से आपकी गिट की प्रोफाइल आपको टेक्निकल साउंडनेस बनाएगी. और ये टेक्निकल साउंडनेस आपको आगे जाके थर्ड ईयर में जो आपका ट्रांजिशन फेस होता है, जहाँ हम अगर बात करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर इंटर्नशिप. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इंटर्नशिप. आप इंटर्नशिप्स को एक्सप्लोर करिए, आप देखिए किस डोमेन सेट के साथ मेरे स्किल सेट मैच हो पा रहे हैं, और ये जो इंटर्नशिप होती है ये आपको हैंड्स ऑन एक्सपोजर देती है, जो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेशर कैंडिडेट की बजाय एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट बनाती है जब आप फोर्थ ईयर में इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं. अलॉन्ग विद दैट योर माइनर प्रोजेक्ट प्लेज an important role. Do not go with any rough idea. जब आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप इन कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं जो आप माइनर प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सर्च वेरी स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स नियर अराउंड यू, एंड उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम एक अच्छा सा माइनर प्रोजेक्ट बना सकते हैं. सो थर्ड ईयर के लिए अगर हम बात करें तो योर इंटर्नशिप इज वेरी क्रूशियल पार्ट, your minor project part is very crucial, and strengthening your core subject along with your git profile is very important. ये सब कैसे होगा? स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस. देयर आर लॉट ऑफ हैकाथॉन्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट थीम. वो जो 36 आवर्स का हैकाथॉन होता है, वो जो 48 आवर्स का हैकाथॉन होता है, जब आप उसमें 5 लोग मिलकर और एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल. और वो कहीं ना कहीं आपको उन सारे लर्निंग एक्सपीरियंस को एक जगह इकट्ठा करके, और जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अल्टीमेटली आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है. और यहाँ बात हारने या जीतने की नहीं है. जस्ट एक्सप्लोर, जस्ट कीप एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि या तो आप जीतोगे या आप उन फेलियर से सीखोगे. और जहां आपने सीखना स्टार्ट कर दिया इन फेलियर से, अल्टीमेटली दैट विल हेल्प यू इन योर फाइनल ईयर. फाइनल ईयर की बात करें तो फाइनल ईयर में आपको जो भी आपने 3 सालों में सीखा है बस उसी को आपको ब्रश अप करना है. डोंट पिक एनीथिंग न्यू,
जो आपने 3 सालों में सीखा है उस पूरी लर्निंग का निचोड़ आप यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट के बारे में डालिए। मेजर प्रोजेक्ट अगेन इज ए इम्पॉर्टेंट फेज यहाँ पर, क्योंकि जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो अल्टीमेटली दे आस्क वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे, और आपका जो रिज्यूमे होता है उसमें आप वही चीज़ लिख रहे हैं जो आपने की है। तो इट इज़ इंटरव्यू इज एन आर्ट बेसिकली। अगर सामने वाला मुझे मेरे रिज्यूमे के बेसिस पर जज करने वाला है तो ऑटोमेटिकली द स्किल्स सेट एंड द सर्टिफिकेशन इन द माइनर प्रोजेक्ट्स एंड मेजर प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन, अगर मैं उसके बारे में मेंशन कर रहा हूँ मेरे रिज्यूमे में, तो उसको डिफेंड करना मेरे लिए बहुत आसान होगा एंड कंपनी ऑटोमेटिकली विल सेलेक्ट यू। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला था कि डोंट गो फॉर द पैकेज, डोंट गो फॉर द प्लेसमेंट, फोकस ऑन द प्रोसेस, वो यहाँ पर आता है कि जब आपकी 3 साल की प्रोसेस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली फाइनल ईयर में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आई कैन क्रैक एनी कंपनी। इफ माई प्रोसेस इज स्मूथ देन ऑफ कोर्स प्लेसमेंट विल कम ऑटोमेटिकली। सो दिस इज अ कंप्लीट 4 ईयर रोड मैप अकॉर्डिंग टू मी। जो भी स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं वो इस रोड मैप को लेकर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मैं एक चीज़ और इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी प्ले ए मेजर रोल। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी स्किल सेट आपने उठाया है, आप उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट जरूर पुट करिए। बिकॉज until and unless you will not be consistent in your domain profiling or your upskilling, आपने जो भी स्किल आज अर्न की है अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं है तो वो आगे जाके आपको फिर वापस उसको ब्रशअप करने में टाइम लगेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रोड मैप दैट एन स्टूडेंट कैन ऑप्ट। थैंक यू सर। तो सर जैसे कि आपने एआई और स्किल्स और कोर सब्जेक्ट्स की बात करी, तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। लाइक एआई, एमएल, डीएस और साइबर सिक्योरिटी जैसे एमर्जिंग स्पेशलाइजेशंस आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कोर सीएसई लेना चाहिए या स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तो सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पीछे ले जाना चाहूँगा कि अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग की शुरुआत जो हुई है वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन कोर ब्रांचेस के साथ हुई है। और आप आज भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बट देर इज़ ऑल्सो अ नीड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। हम देखते हैं कि बहुत सारे नए नए आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं, बट अ सिविल इंजीनियर कैन नॉट इमेजिन दैट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर विदाउट इट्स कोर। सो इन द सेम वे कंप्यूटर साइंस ऐड दीज कोर ब्रांचेस इन अ लेटर फेज। बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैन जी के बीच में पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, दे लव टू ईट द पिज़्ज़ा। तो अगर हम एक पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लेते हैं कि पिज़्ज़ा में एक बेस होता है, फिर आप उस पर बढ़िया सॉस लगाते हो और फिर आप उसमें टॉपिंग का तड़का ऐड करते हो। तो जो कोर सीएस है आपका, वो आपका बेस है ना। ये कोर सीएस जो है, आप कोई सा भी डोमेन ले लें, आप एआई ले लें, आप एमएल ले लें, आप आईओटी पे चले जाएं, साइबर सिक्योरिटी पे चले जाएं, बट कोर सीएस विल रिमेन कोर। सो इसी तरीके से विदाउट उस बेस के उस टॉपिंग की कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ कोर्स एक टेस्टी पिज्जा तभी बनता है जब उस बेस के साथ टॉपिंग्स ऐड होती है। तो सबसे पहले हमें अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, हमें हमारे कोर सीएस का कोर जो हमारे बेसिक्स जो हैं, जिस पर भी मैंने बात करी थी, लाइक सेकंड ईयर में जो बेस स्ट्रॉन्ग मुझे करना है, तो सबसे पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब इसमें आप इंडस्ट्री की टॉपिंग ऐड करिए, जो इंडस्ट्री आज की तारीख में नए नए एड ऑन कर रही है, उस टॉपिंग का आप तड़का लगाइए। जब आपका ये बेस और ये टॉपिंग ऐड होगी, आपके कोर सब्जेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, और उसके साथ साथ जब आप अपना जो भी एआई, एमएल या जो भी डोमेन आप चूज करना चाहते हैं, जो भी आप नया एडिशन करना चाहते हैं, जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे, तो जिस तरीके से पिज्जा में एक बेस के बाद सॉस लगता है और सॉस के बाद जब टॉपिंग ऐड होती है, तो वो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट निकल के आता है, टेस्टी पिज्जा। इन द सेम वे जब आप कोर सीएस के साथ इन टॉपिंग्स को ऐड करेंगे अपने स्किल सेट में, तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ काइंड ऑफ टेस्टी जर्नी, आई कैन से, कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आएगा जो आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा। तो सर इतनी सारी टॉपिंग्स हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी टॉप 3 टॉपिंग्स और स्किल आप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को? ओके, yes, of course there are lot of new things in the market. स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं कि सर इतने सारे डोमेन हैं, मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, या कौन सी चीज़ ऐसी है अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या ऐसा तो नहीं कि मैं लैग कर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को टॉप 3 ऐसे स्किल सेट के ऊपर बात करूंगा कि जो एटलीस्ट हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए।
फर्स्ट स्किल सेट की अगर हम बात करें, या ये 3 टॉपिंग वो होगी जो आपके पिज़्ज़ा को अल्टीमेटली टेस्टी बनाएगी, और ये 3 टॉपिंग वो होगी जो आपके बेस को अल्टीमेटली एक अच्छा मजबूत फाउंडेशन देकर और इंडस्ट्री रेडी बनाएगी। सबसे पहली स्किल सेट की हम बात करें तो लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिट प्रोफाइल, ये हर इंजीनियर स्टूडेंट का होना चाहिए राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रेंथन करते जाएंगे और जब आप अपनी गिट प्रोफाइल को एक्टिव करते जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी कंपनीज जो सी एस अलाइड डोमेन्स के लिए आती हैं, दे लुक फॉर योर गिट प्रोफाइल। वो गिट प्रोफाइल के थ्रू इजीली जज कर लेते हैं कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा काम किया है, हाउ मच टेक सेवी ही और शी इज। सो फर्स्ट स्किल सेट इज योर लिंक्डइन एंड गिट प्रोफाइल। सेकंड, आई शुड से योर प्रोजेक्ट्स एंड हैकाथॉन्स पार्टिसिपेशन। आपके प्रोजेक्ट जो हर इंजीनियर स्टूडेंट को मिनिमम 2 प्रोजेक्ट करने होते हैं, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट। इसके अलावा आप और प्रोजेक्ट्स बनाइए अपने लेवल पर, अपनी स्किल्स को उस प्रोजेक्ट के थ्रू एक अल्टीमेट आउटकम में कन्वर्ट करिए। इसके साथ साथ हैकाथॉन्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ भी मिलते हैं। वहाँ पर आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में बियॉन्डलेस थिंकिंग एबिलिटी आती है कि मैं किस तरीके से एक इनोवेटिव सॉल्यूशन ला के दे सकता हूँ। तो जब, जैसा मैंने बोला था कि इंजीनियर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आप अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। तो हैकाथॉन्स जो हैं और मेजर प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट जो हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ये एक ओपननेस देते हैं कि मैं किस तरीके से एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, उसका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाऊं। एंड थर्ड स्किल सेट इज जो कहीं ना कहीं आपके टेक्निकल स्किल सेट का पार्ट नहीं है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव एंड फॉर योर फ्यूचर जर्नी, दैट इज योर एप्टीट्यूड स्किल्स एंड योर लॉजिकल एबिलिटी एंड योर कम्युनिकेशन। बिकॉज एप्टीट्यूड जितना मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा मेरा एप्टीट्यूड होगा, मेरी लॉजिकल थिंकिंग उतनी अच्छी होगी। और प्रोग्रामिंग इज नथिंग अबाउट लॉजिक सॉल्विंग। लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व हम करते हैं, हमारे लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए। एंड जैसा मैंने बोला, उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन, बिकॉज अल्टीमेटली वॉट एवर वी आर डूइंग, एक स्टूडेंट है जिसके पास सब कुछ अच्छा है, उसके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है, उसकी गिट प्रोफाइल अच्छी है, बट अगर मैं अपने इंटरव्यूअर के सामने इन सब चीज़ों को अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली फिर वहाँ पर वो जो आउटकम मुझे अचीव करना है वो नहीं हो पाएगा। सो ये टॉप 3 स्किल्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, लिंक्डइन एंड गिट प्रोफाइल। Second one is your hackathon and projects part, and third one is your aptitude, logical and communication part. ये 3 स्किल सेट किसी भी पिज़्ज़ा के साथ आप ऐड करो, किसी भी बेस के साथ आप ऐड करो, अल्टीमेटली ये 3 टॉपिंग कहीं ना कहीं स्टूडेंट को डेफिनेटली एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाने में हेल्प आउट करेगी। सो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। सो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग दिस knowledgeable information with us. And if you have any questions or query, then welcome in comment section. Thank you. थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप जो भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। और इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, जस्ट फील फ्री टू आस्क, बिकॉज ये जो 4 साल का इंजीनियरिंग का सफ़र है ना, इसको इतना यादगार बनाना है कि ये जीवन भर याद रहे। सो इसी के साथ इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone.